Hello students, welcome to today's geography session. Today we will study chapter 2 Forest and Wildlife. In this chapter we will learn how wildlife and forests are considered as a resource for us, how we are exploiting it, and the different ways to conserve this beneficial resource. So let's get started. Students, here you can see that forests get divided into two categories. First category is flora and the second one is fauna. This shows that forest has two important components, that is flora and the fauna. Flora represents plant kingdom, or it represents the plant world, and the fauna represents the animal kingdom, or you can say the animal world. These two terms, flora and fauna, are the two biological terms given to plants and animals. So don't get confused कि plants और animals लिख सकते हैं कि flora and fauna लिख सकते हैं. कुछ बच्चों की आदत है वो जब flora लिखना होता है तो plant लिखते हैं, जब fauna लिखना होता है तो animals लिख देते हैं. Be very precise with these terms because these are the biological terms which you must use while studying geography. When we talk about forest and wildlife, we must be familiar with the term biodiversity. Again, I would say that the term biodiversity includes two terms, that is flora and fauna, and this term biodiversity actually reflects the richness of forest and the wildlife. Now let's first talk about the richness of flora. In India, we have total 47,000 plant species, out of which 15,000 plant species are of flowering plant, which are totally endemic. Endemic means native, or you can say that these species are present in India itself. And out of these endemic species, 10% species are grown wild and is at the verge of extinction, or you can say threatened. So this complete data of flora is equal to the 7% of the world's flora. Now let's talk about fauna. There are 81,000 animal species in India. In some reference books I found 81,251 animal species we find in India. And out of these 79 species are of mammal, and out of these 79 species of mammal, 20% species of mammals are threatened, 44 species are of birds, 15 species are of reptiles, 3 species of amphibians are threatened, and this complete data of fauna of India is equal to 6.5% of world's fauna. So in India we have numerous cultivated species, and there is diversity in the forms and functions of each species. That means different forms are there, different functions are there for each individual, and each species is closely related in a system by the multiple network of interdependencies. अब ये मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज क्या चीज़ है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वी हैव n नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट एंड हाफ ऑफ दीज ट्रीज आर कट बाय वी पीपल, देन द वाइल्ड लाइफ विल ऑल्सो बी रिड्यूस टू हाफ, and also the indigenous species of that particular area will also reduce to half. So with this deforestation, we are with one factor, if we are reducing one factor, that means ultimately all the other factors will be affected. And this shows that all the system of biodiversity are closely interrelated, and there is a kind of multiple network of interdependencies that exist between flora and India is among the world's richest biodiverse nation, as we like in India we have total 8% of the world's species. Now, as per the name of the chapter, forest and wildlife resources, we knew that
Resources are those things which are useful to humans, which human values and uses to satisfy their needs. So from this image we can see that flora acts as a source of food for we people, for the living organisms. Then it gives us firewood, fiber, timber, medicine, gums, tannin and many more things. Now students, these are the materialistic things. इसके अलावा भी जो फ्लोरा है वो हमें ह्यूमन लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है और फ्लोरा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे ह्यूमन लाइफ में. अब इस इमेज के में ही हम देखेंगे कि और ये प्लांट्स हमारे लिए क्या करते हैं. रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल because they release oxygen for we people and we releases carbon dioxide which is absorbed by these plants. इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग भी रिड्यूस हो जाती है. जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज होने की संभावना होती है वो रिड्यूस हो जाती है. ग्लोबल टेम्परेचर राइज नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी. और क्या करते हैं प्लांट्स रिड्यूस करते हैं इवेपोरेशन रेट. देन प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. अब जितने भी बर्ड्स हैं और जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सब का रहने की जगह कहाँ है? ये फ्लोरा किंगडम. ये जो प्लांट्स हैं ये हमें बहुत ज़्यादा सर्दी से भी बचाते हैं, छाया देते हैं. दे गिव्स अस शेड. देन ये ब्यूटी को बढ़ाते हैं. आपने कभी इमेजिन किया, मान लो आप कहीं घूमने जाते हो किसी पिक्चरस्क लोकेशन पे, तो वहाँ पर अगर कोई पेड़ पौधा ना हो तो आप अपने आप को कैसा महसूस करोगे? वहाँ जाकर जाना चाहोगे दोबारा वहाँ? नहीं. सो दीज प्लांट्स ऐड ब्यूटी टू द नेचर. देन प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है. हर एक प्लांट की रूट में नहीं होता है, जिससे कि नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन होता है. और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बनाए रखने में हेल्पफुल रहता है. अब ये जो प्लांट्स हैं ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ही फूड प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि ये एनिमल्स, बर्ड्स, बीज, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, इन सब को फूड प्रोवाइड करते हैं. सो अगेन दीज आर very beneficial to all life existing things, life existing organisms. प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं स्पेसिफिकली, वैसे तो हर एक प्लांट की रूट जो है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, सॉइल इरोजन से बचाती है. पर अगर हम प्लांट्स की कैटेगरी में देखें तो जो बड़े ट्रीज़ होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं. हमें इन्हें कट नहीं करना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन से बचना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ होगा उसकी जड़ें उतनी मजबूत होती हैं और वो उतनी ही मजबूती से सॉइल को बाइंड करके रखती हैं अपने साथ, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता, जकड़ कर रखती हैं ये मिट्टी को. ठीक है. अब हम ह्यूमन बीइंग्स जो है ना अपनी नीड और ग्रीड को प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं. तो हम क्या करते हैं, अपनी ग्रीड के अकॉर्डिंग, अपनी नीड कम लेकिन ग्रीड के अकॉर्डिंग हम लोग फ्लोरा किंगडम को नुकसान पहुंचाते हैं. नो वन एग्जांपल इज़ देयर. हिमालयन यू एक ऐसा प्लांट है जिसके जो है रूट से, निडल से, बाग से, स्टेम से, उसका मतलब इस हिमालयन यू ट्री का हर एक पार्ट से हमें टेक्सोल नाम का एक केमिकल रिलीज़ होता है. और ये जो टेक्सोल है ये कैंसर मेडिसिन इससे बनती है. सो इट इज़ वेरी प्रीशियस और यू कैन से बहुत ज़्यादा कीमती पेड़ है हमारे लिए. और हमने क्या किया है, अपनी नीड के लिए इस हिमालयन यू की इतनी ज़्यादा कटिंग करते हैं, इतना ज़्यादा इसको हमने काट काट के ख़त्म कर दिया है कि आज ये हिमालयन यू जो ट्री है ये इट इज़ अंडर थ्रेटन.
ये अब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ चुका है। अब इसके लिए गवर्नमेंट सोच रही है कि क्या करना है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे एक नॉर्मल स्पीशीज़ था तब हमने इसकी केयर नहीं की। फिर ये वल्नरेबल में आया, फिर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आया और फिर फाइनली एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आने वाला है। तो उससे पहले अब हमने सोच लिया कि चलो इसको बचाएं। तो दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। हमें किसी भी चीज़ के पीछे, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, कुछ चीज़ जहाँ से प्रॉफिट मिलता है हम उसी को निचोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। सो नाउ विद दिस we can understand the benefit and importance of flora. Now let's move to the fauna. Now animals or the faunas are also resource to us, like we receive dairy products. Dairy products किससे बनते हैं? Milk से बनते हैं, and milk is the product which we get from animals. Then meat, we all know. फ्लैश का रेफरेंस यहाँ से है, जो एनिमल स्किन से जो हमारे को प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक जो लेदर मिलता है, स्नेक की स्किन है, क्रोकोडाइल की स्किन है, या बाकी एनिमल्स की स्किन है, जिससे हम लोग कोट पहन, लेदर के कोट, लेदर के शूज़, लेदर की बेल्ट, तो ये सब क्या है, फ्लैश का रेफरेंस इनसे है। देन एंटलर्स जो हैं ये डियर के सींग हैं, उनको हम कहते हैं एंटलर्स। और एंटलर्स क्या है, ये अपने आप अगर एक बार हिरन के सींग निकाल दिए जाएं तो वो दोबारा ग्रो हो जाते हैं। तो इनसे जो हैं, एक तो ये डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं, हम लोग इनको यूज़ करते हैं। इनके दाम बहुत, जो ओरिजिनल एंटलर्स होते हैं उनकी कॉस्ट भी बहुत होती है। और जो हमारे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अभी कुछ समय पहले तक ये सब जो हैं डियर एंटलर स्प्रे को यूज़ किया करते थे, बिकॉज इट इम्प्रूव्स मसल स्ट्रेंथ एंड बूस्ट अप द एनर्जी। बट अब ये बैन हो चुका है, तो इतनी ज़्यादा जो है इसमें शक्ति होती है। एंटलर्स को ना बाकी एनिमल्स भी खा लेते हैं, जैसे क्योंकि इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो। अब जो फ़र यू ऑल नो कि हमें जो शीप फ़र है उससे हमें वूल मिलता है, ऐसे ही रैबिट फ़र जो है उससे हम लोगों के सॉक्स वगैरह आजकल बनते हैं। फिर जो बाकी एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके जो स्किन में ये जो बाल होते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड फ़र, उससे क्या होता है, पेंटिंग ब्रश वगैरह बनते हैं और डोर मैट्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक टाइप का फ़र है उससे सिर्फ हमारे स्वेटर बन जाएंगे, वूल मिल जाएगी। तो मैक्सिमम जैसे घोड़े के बाल हैं, इनसे पेंटिंग ब्रश बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरीके से हर एनिमल का जो फ़र है उनमें से कुछ ना कुछ हम बनाते ही हैं। टस्क्स, अगेन इट इज़ द एलिफेंट टीथ और आइवरी। अब टस्क के वैसे तो आपको सब यूज़ेस पता ही हैं, एक कॉमन सा जो यूज़ है और हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, हम बड़े शौक़ से ख़रीद के लाते हैं। ये है लड़कियां जब मैरिज में जो चूड़ा पहनती हैं, जो प्योर हाथी दांत का चूड़ा होता है ना, रेड एंड वाइट बैंगल्स, जिसको हम काफ़ी टाइम तक पहनना पसंद करते हैं, अगर वो प्योर हाथी दांत का होता है, प्योर एलिफेंट टीथ का होता है, तो वो बहुत कॉस्टली आता है। तो ऐसी चीज़ों को हम प्रेफर करते हैं पहनना, पर हम उसके पीछे की चीज़ नहीं देखते कि इसका ये कहाँ से आया है, कितने लॉस के बाद, हमने वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान पहुँचा है, उसके बाद ये बन के आया है। देन मेडिसिन्स तो हमें, आपको पता ही है, एनिमल से एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, लाइक कॉड लिवर ऑयल जो हमें फ़िश से मिलता है। और आजकल क्या है, एनिमल्स की हम लोग फार्मिंग करते हैं, लाइक कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, तो इससे क्या है, जॉब के प्रोस्पेक्टस बढ़े हैं, है ना। सो अगेन दिस फाउना इज़ अ रिसोर्स। अब मेडिसिन्स की बात की है तो कुछ काफ़ी चर्चा में रहे लास्ट ईयर तक जो एनिमल्स हैं, उनको मैं आपको थोड़ा सा शेयर करती हूँ। लाइक डीप सी बैक्टीरिया, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट प्रोस्टेट कैंसर। देन तिलापिया फ़िश, इट इज़ यूज्ड, जो तिलापिया फ़िश की जो स्किन है, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इवन जो प्लास्टिक सर्जरी होती है ना, उस समय इसी फ़िश की स्किन काम आती है प्लास्टिक सर्जरी के टाइम पे। देन
लीच एक ऐसा एनिमल है, छोटा सा होता है लीच, जिसको हम जोंक कहते हैं। जो मेडिसिनल लीच होती है ना, वो काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहती है। एक्चुअली ये आयुर्वेदा का एक पार्ट है, और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं ये हमारे जो बॉडी में है ना, ब्लड फ्लो को इनिशिएट करते हैं, और ये काफ़ी सारे स्किन डिजीज़ेस को दूर भी करती है। आजकल तो जो ब्यूटी पार्लर्स हैं इसमें भी लीच का काफ़ी यूज़ होने लगा है, मेडिसिनल लीचेस का। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। अब एक कॉमन सा एग्जांपल और मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि कैप्सूल्स जो हम खाते हैं, आप बच्चे लोग भी जब बीमार होते हो आप कैप्सूल खाते हो ना। अब आप अपने आप को वेजिटेरियन कह रहे हो या नॉन वेजिटेरियन, इट डजेंट मैटर, बट जो कैप्सूल है उसका जो कोट है दैट इज़ मेड अप ऑफ बीफ जेलेटिन। अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन ओनली। तो this is the way we use animals as a resource, like in biological terms fauna as a resource. अच्छा, अब एक बात तो क्लियर हो गई बच्चों कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, बट अगर ये हमारे लिए इतने बेनिफिशियल रिसोर्सेज हैं, इतने इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, तो उनके बचाव के लिए, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं या कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो गायब हो जाएं और हम लोग उनके बेनिफिट से दूर हो जाएं, तो हमें उनको बचा के रखने के लिए क्या करना है। तो इनको बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको IUCN कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स की जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सब को 6 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। And this organization is the world's oldest and the largest conservation organization with almost 15,000 NGO members and 1,300 government members. And this organization is founded in 1948, and it is the only environmental organization to have observed status in UN. This organization focuses on valuing and conserving biodiversity. Now, इस IUCN ने जो सभी प्लांट्स, जितने भी प्लांट स्पीशीज़ हैं या एनिमल स्पीशीज़ हैं हमारे इंडिया में, उसको 6 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और ये 6 मेन कैटेगरीज हैं: नॉर्मल स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़, rare species and vulnerable species. Now let's understand each category of species one by one. The first one is the normal species. ये वो स्पीशीज़ हैं जिनका कि पॉपुलेशन नंबर या पॉपुलेशन काउंट एक अच्छा खासा नॉर्मल काउंट है, और इनके पॉपुलेशन काउंट में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है. So the population levels are considered to be normal for their survival. For example, cattle, pine, sal, rodents, etc. Now the second category is endangered species. अब जो species इस कैटेगरी में है, endangered species की कैटेगरी में, तो उससे हमें ये पता चलता है कि इन स्पीशीज़ की काउंट, पॉपुलेशन काउंट लगातार जल्दी घट रहा है, और अब ये बिल्कुल लुप्त होने की, यानी कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अलार्म फॉर अस कि जैसे ही कोई स्पीशीज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आती है, तो हमारे लिए एक अलार्म है कि हमें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत अच्छा प्रोटेक्शन, स्पेशल केयर सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि हम इन एनिमल्स को उस सिस्टम में रख कर संभाल सकें, इनकी पॉपुलेशन को फर्दर ग्रो कर सकें और इस एंडेंजर्ड कैटेगरी से हटा सकें. तो अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं: ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस विच इज़ फाउंड इन कच्छ रीजन, इंडियन राइनो, लाइन टेल मकैक, शंघाई, एट्सेट्रा. अब ब्लैक बग का तो एक काफ़ी पॉपुलर किस्सा भी था, इशू था
कि सलमान खान ने जोधपुर में ब्लैक बक को मारा था, और ये इशू इसलिए इतना बड़ा था क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी। ब्लैक बक एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी और इस पे कई साल केस भी चला था। तो ऐसी स्पीशीज़ को हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई भी जो है फ्लोरा या फाउना की कोई भी स्पीशीज़ इस कैटेगरी में ना आए। ना द थर्ड कैटेगरी इज़ वल्नरेबल स्पीशीज़। ये वो स्पीशीज़ होती हैं जिस पर हम इजीली अटैक कर सकते हैं, और इन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कम तो हुई है लेकिन अभी वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में नहीं आई हैं। तो हमें इन स्पीशीज़ को की ओर ध्यान देना है, इनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। अब इनको प्रोटेक्ट किस तरीके का करना है? इस तरह से करना है कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में ना आए। हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है ताकि वो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में ना जाएं। लेकिन वल्नरेबल स्पीशीज़ को कैसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? जब हमें पता चलता है कि कोई स्पीशीज़ वल्नरेबल स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ गई है, तो हमें उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है कि अब वो फर्दर और उसकी पॉपुलेशन रिड्यूस होकर वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में ना आ जाए। नाउ सो with the formal definition, vulnerable species are the one which has been categorized by the IUCN as likely to become endangered unless the circumstances threatening its survival and reproduction improves. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं like blue sheep, gangetic dolphin, एशियाटिक एलिफेंट। ये तो कुछ फाउना स्पीशीज़ हैं, लेकिन कुछ फ्लोरा स्पीशीज़ भी हैं हमारे पास जो कि वल्नरेबल की कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ इज़ देयर एंड वन ऑफ द ग्रास स्पीशीज़ इज़ ऑल्सो देयर एंड आई हैव मेंशन द नेम्स ऑल्सो। नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज़ द कैटेगरी ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट का मतलब दीज स्पीशीज़ आर नो मोर। अब वो किसी पर्टिकुलर रीजन से, किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया से हो सकता है एक्सटिंक्ट हो गई हो कोई स्पीशीज़, या किसी पर्टिकुलर कंट्री से कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हो, या कॉन्टिनेंट या पूरे एंटायर अर्थ पे से वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हो, तो दैट स्पीशीज़ इज कैटेगराइज अंडर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। अब जैसे डायनासोर है बेटा, डायनासोर जो है हम सुनते ही हैं पर पूरी अर्थ पे ना तो ये कहीं देखने को मिलते हैं, और चाहे हम कितने लाख जतन कर लें लेकिन ये डायनासोर अब हमें कहीं नहीं, पूरी अर्थ पे ही नहीं मिलते। डोडो बर्ड है, अगेन इट इज़ एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एशियाटिक चीता, दिस स्पीशीज़ इज़ एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया इन 1952। ये डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 में ही कि ये जो है चीता, एशियाटिक चीता, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया में। पिंक हेडेड डक, अगेन इट इज़ एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। माउंटेन क्वेल एंड फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, दो दे आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन बट दे आर kept in reserved areas and they are very few in count. Now have a look to this slide. This slide is exactly similar to the thing which is given in your NCERT book. मैंने वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मैटर उठाया है आपके लिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। Now the world's fastest land animal is Asiatic cheetah, and the cheetah is unique and specialized member of the cat family and can move at the speed of 112 km per hour. And the second point here is prior to the 20th century, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, prior to the 20th century cheetahs were widely distributed throughout Africa and Asia. Fine. If this point is very though it is very clearly mentioned here. Now have a look to another slide. Today the Asian cheetah is nearly extinct. Nearly extinct, ये वर्ड आपने ध्यान से देखना है। nearly extinct लिखा है, extinct नहीं लिखा है। Due to a decline of available habitat and prey. habitat का मतलब उसका घर, उसको रहने के लिए जो जगह है, दैट इज़ हैबिटेट। एंड प्रे मतलब जिस पे वो जी रहा था, जो उसका भोजन था, जो उसका शिकार था वो। सो
द स्पीशीज़ वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री यहाँ मेंशन की गई है, लॉन्ग बैक इन 1952। अगर ये इंडिया से एक्सटिंक्ट है तो इस समय और कहाँ पर है? लेट्स सी नाउ। दीज डेज these Asiatic cheetahs are found in Kavir desert region of Iran and in the dry open Balochistan province of Pakistan, and the total count of these Asiatic cheetahs are about 50. So again these are in the category of endangered species. Fifth category is the category of endemic species. एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब है कि वो स्पीशीज़ जिनका कि हैबिटेट एक पर्टिकुलर एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं रह सकते, वहाँ जीवित नहीं रह सकते, तो एक स्पेसिफिक रीजन में ही वो जीवन जी सकते हैं। तो ऐसी जो स्पीशीज़ होती हैं, एक तो वो पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड हैं एक पर्टिकुलर एरिया से, और दूसरा उनका इस वजह से उनका जो पॉपुलेशन काउंट होता है ऑलरेडी लो होता है, कम होता है। अब आप मान के चलो, एक एग्जांपल लो, स्पैरो है, वो ऑल ओवर कंट्री है, कहीं पे भी जाओगे तो आपको स्पैरो देखने को मिलेगी, पर क्या कहीं पे भी जाओगे तो अंडमान टील या निकोबार पिजन देखने को मिलेगा? नहीं। अब देखो, इनके नाम के आगे उनका रीजन भी लिखा हुआ है, निकोबार पिजन। तो ये पिजन कहाँ मिलेगा? सिर्फ निकोबार में। अंडमान टील, ये टील कहाँ मिलेगी? ये सिर्फ अंडमान में ही मिलेगी। तो जब ऑलरेडी इनका हैबिटेट एरिया रिस्ट्रिक्टेड है तो इनका पॉपुलेशन काउंट भी लो है, तो ऐसे स्पीशीज़ को हमें अगेन काफ़ी प्रोटेक्शन में रखना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए, इनको हेल्दी एनवायरनमेंट में रखना चाहिए ताकि ये उसी पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रो करें, एक्सटिंक्ट ना हो, ना तो ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आए। अगर वल्नरेबल में आ गए तो फिर उनको बचाएं ताकि वो एंडेंजर्ड में ना आए, और इन केस हम लोग कोई भूल चूक करते हैं और वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं तो हमें और ज़्यादा अलर्ट होके इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अब देखो, एग्जाम्पल्स जो हैं इनमें वो पर्टिकुलर रीजन साथ में आ रहा है, जैसे नीलगिरी ब्लू रॉबिन, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी माउंटेन्स में। नीलगिरी ताहर, ये कहाँ मिलेगा आपको? नीलगिरी हिल्स में ही मिलेगा। अब अंडमान वाइल्ड पिग, मतलब ये वो वाइल्ड पिग है जो सिर्फ अंडमान रीजन में मिलेगा। अंडमान टील, ये कहाँ मिलेगी? सिर्फ अंडमान में। निकोबार पिजन कहाँ मिलेगा? सिर्फ निकोबार में। मिथुन कहाँ मिलेगा? मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये कहाँ मिलना है? सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही। तो इस तरीके से ऐसी स्पीशीज़ को भी काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि ऑलरेडी इनका पॉपुलेशन काउंट लिमिटेड है, तो उनको हमें प्रिजर्व एक तरीके से सेफ रखना चाहिए। देन द सिक्स कैटेगरी इज़ ऑफ रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ का मतलब होता है वेरी अनकॉमन, जो आम देखने को नहीं मिलती, कहीं कहीं कभी कभी देखने को मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड रेयर स्पीशीज़। अब रेयर स्पीशीज़ दोनों हो सकती हैं, प्लांट की भी स्पीशीज़ कुछ रेयर हो सकती हैं और एनिमल्स की भी कुछ स्पीशीज़ रेयर हो सकती हैं। सो रेयर एनिमल्स कैन मूव इनटू एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ईजीली। जो रेयर स्पीशीज़ होती हैं ये बहुत जल्दी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाती हैं अगर इनके नेगेटिव फैक्टर्स इनको इफ़ेक्ट करें, कोई नेगेटिव फैक्टर इनको इफ़ेक्ट कर जाता है तो, या इनको हम पर्सनली हार्म करना शुरू कर दें तो। जैसे नेगेटिव फैक्टर्स में क्या है? इनका हैबिटेट या प्रे वहाँ से ख़त्म होने लग जाए तो, या फिर ह्यूमन बींग्स कोई रीज़न क्रिएट कर दें तो। ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो फटाफट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ जाती हैं और दे आर एट द हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में जल्दी से आ जाती हैं तो ये बहुत जल्दी इनके एक्सटिंक्ट होने का भी डर बना हुआ रहता है। अब जैसे कि जायंट पांडा, अब एक मूवी आई थी ना, कुंग फू पांडा मूवी, उसमें देखा था जायंट पांडा। अब वो ये वही है, जायंट पांडा जो है बहुत रेयर स्पीशीज़ है, इसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है ताकि ये बचे रहें। देन सेम डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि
rare species हैं. Now 2 more categories are there. One is data deficient, and in this category we do not have we kept the species about which we do not have the sufficient data to find out the level of the threat for that particular species. And another one is the not evaluated, means not counted by the IUCN till date, and such species are kept under this category. Now, under important studies, one case is considered here. It is of Himalayan yew. Himalayan yew एक ऐसा प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और इसको हम टेक्सास वेलिचिनिया के नाम से भी जानते हैं. इस पेड़ के बाग से, निडल से, रूट से, बॉडी के इसके जो प्लांट बॉडी के हर पार्ट से लगभग हमें टेक्सोल मिलता है, और टेक्सोल वो केमिकल है जिससे एंटी कैंसर मेडिसिन बनाई जाती है. सो ड्यू टू दिस रीज़न ओनली दिस हिमालयन yew ट्री इज़ अंडर ग्रेट थ्रेट. क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इससे कैंसर की मेडिसिन बनाई जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले ट्रीज़ हिमालयन yews को हम काट रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, अगेन अपने बेनिफिट के लिए. पर हमने इसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढा, और साथ के साथ ऐसा नहीं किया कि हमने एक फॉरेस्ट काटा है तो एक फॉरेस्ट हमने इसका तैयार कर दिया हो, ऐसा भी नहीं किया है. सो दिस ट्री इज़ अंडर थ्रेटन. अब हमने ऑल 6 कैटेगरीज़ को तो स्टडी कर लिया है जो कि IUCN ने प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ की हमें प्रोवाइड की हैं. बट उस IUCN ने ये 6 कैटेगरीज़ क्यों बनाई? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? ऐसा भी तो हो सकता था कि IUCN एक ही सिंगल कैटेगरी लेके चलता कि नॉर्मल स्पीशीज़, और उसी में सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ आ जाते, और फिर फर्दर उन्हीं को उनका कंजर्वेशन किया जाता. पर ऐसा नहीं है. ये 6 कैटेगरीज़ क्लियरली शो करती हैं कि कोई ना कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से कुछ स्पीशीज़ रेयर स्पीशीज़ की कैटेगरी में हैं, कुछ एंडेंजर्ड में आ रहे हैं, कुछ वल्नरेबल में आ रहे हैं, कुछ एक्सटिंक्ट में आ रहे हैं. तो इस तरीके से ये रीज़न्स क्या हैं, अब हम इसको स्टडी करते हैं. क्यों पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है वाइल्ड लाइफ की या फॉरेस्ट की, ये सब हमने अभी स्टडी करना है. सो बट बिफोर स्टडिंग दिस, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, that is ISFR of 2015. Now it is very important to focus on the report of ISFR 2015, as there was a rise in the open area and the dense forest. And if we look onto the global picture, then you have 3/4 of the land which is not forested, and nearly 21% of the land is under the forest cover. But according to Indian Forest Policy, that is IFP, nearly 33% of land should be under forest. अगर हमारा जो 33% लैंड है फॉरेस्ट कवर्ड है, तो ही हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो स्मूथ रहेगा. Now, however, there has been an improvement in the forest cover in the 5 states. Now, it is mentioned in this image that these 5 states are Tamil Nadu, UP, Kerala, Karnataka, and Jammu and Kashmir. But out of these 5 states, 2 states, that is Tamil Nadu and Kerala, shown a significant rise in the net forest area. Forests actually acts as a carbon sink. They absorb carbon dioxide and gives us fresh oxygen. As a result, there has been an increase in carbon dioxide absorption. Now, there are 2 different specific categories, like in terms of area. If we talk about in terms of area, then Madhya Pradesh has the largest forest cover area. But if we talk about like in terms of percentage forested area, which is proportional to the total area that is present, and in that Mizoram stands first
with 88.93% of the total area अंडर फॉरेस्ट कवर। अब हमें ये तो पता चल गया है कि फॉरेस्ट जो है वो 21% है हमारे पास, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी कितना परसेंटेज चाहिए? दैट इज़ 33। तो बहुत कम परसेंटेज है हमारे पास फॉरेस्ट का। अब हमें इसको बढ़ाना है, 33% तक लेके आना है। अब क्योंकि हमने फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा काट दिए, ऑलमोस्ट 50% फॉरेस्ट हम डिप्लीट कर चुके हैं। इस फॉरेस्ट डिप्लीशन की वजह से हमने 70% वाटर बॉडीज़ भी साथ में पॉल्यूट कर दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और इन सब के साथ साथ कहीं इफ़ेक्ट जो है हमारे वेटलैंड्स को हो गया है, जिसकी वजह से 40% वेटलैंड्स हैव बीन ड्रेन्ड आउट। नाउ लेट्स डिस्कस द नेगेटिव फैक्टर्स विच actually affects the forest and wildlife. Now the depletion of forest and wildlife, या आप इसको बायोडाइवर्सिटी का डिप्लीशन भी मान सकते हो। इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न जो है दैट इज़ ओनली वी ह्यूमन बींग्स। नाउ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड या एक्सपेंशन पीरियड आप उसको बोल सकते हो, उस पीरियड में क्या था कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन बहुत हुआ, माइनिंग स्टार्ट हो गई, रेलवेज़ जो हैं वो रेलवेज़ का एक्सपेंशन हुआ। तो ऑल दिस लेड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस आज से नहीं हो रहा है, ये हमारा कॉलोनियल पीरियड से स्टार्ट हो चुका था ना। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है मैक्सिमम? इट इज़ बिटवीन 1940 टू 1980 बेसिकली। अब एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कैसे होता है? पहले पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, तो हमने पॉपुलेशन इंक्रीज़ की। इस टाइम ड्यूरेशन में पॉपुलेशन का इंक्रीज़ काफ़ी हुआ, जिसकी वजह से फूड की डिमांड इंक्रीज़ हुई। अब फूड कैसे हम फूड की डिमांड को पूरा कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हमने क्रॉप प्रोडक्शन करनी है तो हमें लैंड की ज़रूरत है, और वो लैंड कहाँ से आएगा? फॉरेस्ट को क्लियर करके ही एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? अगेन डिफॉरेस्टेशन। कौन कर रहा है? वी पीपल। तो हमने एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन डिफॉरेस्टेशन करके ही किया है, और आज तक लगभग हम लोग 26.200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कन्वर्ट कर चुके हैं एग्रीकल्चरल एरिया में। देन नेक्स्ट फैक्टर इज़, हम जैसे बिगनिंग में हमने डिस्कस किया था, फॉर आवर ग्रीड एंड नीड वी पीपल आर वेरी सेल्फिश। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से हमें बेनिफिट मिलना लगता है हम उसको ज़्यादा निचोड़ते हैं। अब हमने क्या किया, कमर्शियल जिन स्पीशीज़ का हमें कमर्शियल लेवल पे ज़्यादा यूज़ आया, वैल्यूएबल स्पीशीज़ का, वो हमने ज़्यादा ग्रो करनी शुरू कर दी, उन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी शुरू कर दी। जैसे टीक मोनोकल्चर है, तो टीक मोनोकल्चर कहाँ हुआ? साउथ इंडिया में बेसिकली, एंड इट हैज़ डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। अब चियर पाइन प्लांटेशन किया हमने हिमालयज़ में, जिसमें कि हमने चियर पाइन तो ग्रो किया, उसकी प्लांटेशन तो की, पर हमने ये ध्यान नहीं दिया कि वहाँ का जो ओरिजिनल हिमालयन ओक है और जो रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट है उसको हमने रिप्लेस कर दिया। किससे? चियर पाइन से। अब ये क्या था? वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन थी, उसको हमने ख़त्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ चियर पाइन विच इज़ अ प्लांटेशन। देन कम्स द माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ हमने किस लिए किया? माइन हम तब करते हैं जब हमें अर्थ में से कोई वैल्यूएबल मिनरल या कोई जो है स्पेशली स्टोन वगैरह निकालने होते हैं। तो ये जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं जो हम अर्थ में से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, ये बेसिकली हम लोग अर्थ को स्पॉइल करते हैं। अर्थ के अंदर तो ठीक है कि माइनिंग एक्टिविटी चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें फिट करते हैं, लेकिन हम अर्थ को तो उस एरिया का पूरा जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। उस रीजन के से जितनी एरिया में माइनिंग हुई है ना, उससे भी कई किलोमीटर दूर तक की जो वाइल्ड लाइफ है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और ये इतने सेंसिटिव होते हैं एनिमल्स कि ये कई तो बहरे हो जाते हैं। माइनिंग की जो वहाँ पे आवाज़ें होती हैं ना, उससे बहरे और अंधे भी हो जाते हैं।
एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। हमें तो सिर्फ सेल्फिश हैं, हम लोग तो अपने काम से काम मतलब है कि हमें मिनरल रिसोर्सेज निकालने हैं। बट अगर हम वाइल्ड लाइफ का ध्यान करें तो हम माइनिंग एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसका एक बहुत ही भयानक एग्जाम्पल है बक्सा टाइगर रिजर्व विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। वहाँ पे क्या है, बेसिकली हम लोग जो माइनिंग में यूज़ करते हैं दैट इज़ डोलोमाइट माइनिंग। और डोलोमाइट माइनिंग का यहाँ पे एक बहुत ही बैड इफ़ेक्ट हुआ है। यहाँ के जो टाइगर्स हैं वो सारे वहाँ से शिफ्ट करने पड़ गए और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ थी वो टोटली डिस्टर्ब हो गई। इवन द इंडिजिनस स्पीशीज़ जो वहाँ रहती वो भी इधर उधर मतलब मूव हो चुकी हैं। नाउ द नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और यू कैन से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस चीज़ के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, लैंड में जो है डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फिर उस लैंड को तैयार करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। और जब तक वो लैंड ठीक रहती है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा रहता है, तब तक तो ठीक है। उसके बाद में हम उसको जला देते हैं ताकि और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो क्या है, लैंड अपनी नेचुरल फर्टिलिटी कई सालों बाद काफ़ी समय लगता है वो गेन करने के लिए। टिल देन ना तो वहाँ कोई फॉरेस्ट है, ना कोई वेजिटेशन है, और वहाँ की ना कोई वाइल्ड लाइफ वहाँ सर्वाइव कर पा रही है। सो अगेन वी आर द ओनली कल्प्रिट्स। और इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग फायर फेलो कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉट एंड डिफॉरेस्टेशन जो है दे इंड्यूस्ड फ्लड्स। अब डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन बींग्स ने किया जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन ड्रॉट एंड फ्लड्स। अब जहाँ ट्रीज़ नहीं होंगे, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होगा, जहाँ पे ट्रीज़ नहीं होंगे, वहाँ पर एयर पॉल्यूशन का भी रेट बढ़ता है। और ये हम ही हैं, वी ह्यूमंस आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट फैक्टर इज़ द लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन है या रेलवेज़ हैं, रोड नेटवर्क्स हैं, एंड ह्यूज इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट है, या रिफाइनरीज़ हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसके नाम पर भी हम लोग जो हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को लार्ज स्केल पे ख़त्म करते चले जा रहे हैं। अब क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल है, नर्मदा रिवर पे जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बनाया गया वो किस लिए किया गया, जस्ट फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जस्ट टू कंस्ट्रक्ट दिस डैम near about 40,000 to 50,000 hectares of land or forest land has been cleared। अब इतने बड़े एरिया से अगर हम फॉरेस्ट एकदम से हटा देंगे तो उसका बहुत गलत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे वाइल्ड लाइफ पे, एंड इट डायरेक्टली इफ़ेक्ट्स यू कैन से वाइल्ड लाइफ बैडली। देन कम्स द ओवरग्रेजिंग बाय द एनिमल्स। क्या है, ग्रेजिंग लैंड्स अलग होते हैं और एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही एनिमल्स को ग्रेज करना चाहिए उस लैंड पे, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे ध्यान दें। लेकिन समटाइम्स वी पीपल डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कि वो एनिमल्स को एक ही लैंड पे ओवर ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो जो एनिमल्स हैं वो उसको ओवर ग्रेज कर जाते हैं। ओवर ग्रेज का मतलब जड़ों समेत उखाड़ कर खा जाते हैं। तो और उसमें बार बार उस लैंड पे वो एनिमल्स जब चलते हैं तो नई जो घास उग रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ डिप्लीशन। देन फ्यूल वुड कलेक्शन। अब देखो काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ या आज भी अपने नियर बाय एरियाज़ में हम लोग देखते हैं जो हमारे आपके घरों में जो मेड वगैरह आती हैं, ये क्या करती हैं, सर्दी के दिनों में अगर आप इनकी झुग्गियों में जाके देखोगे ना, इनके घरों में लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर पड़े होते हैं, कटी हुई लकड़ियों के। तो ये क्या है, दैट इज़ द फ्यूल वुड कलेक्शन। तो अगर हम पेड़ों को काट काट के लकड़ियाँ जमा करते चले जाएंगे, सिर्फ उसको ईंधन की तरह एज अ फ्यूल यूज़ करते जाएंगे, तो अगेन इट इज़ अ मेजर कॉज फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। देन हंटिंग एंड पोचिंग। अब हम एनिमल्स को अपनी ज़रूरतों के लिए उनका शिकार करते हैं, उनका ब्लैक में जो है, अभी हमने बिगनिंग में जो एनिमल प्रोडक्ट्स देखे हैं, डिस्कस किए थे, उनके लिए अगर हम ब्लैक में काम करते हैं तो ये काम गलत है। हंटिंग और पोचिंग हमें नहीं करने चाहिए, वी मस्ट अवॉइड दैट।
देन फॉरेस्ट फायर, कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जंगलों में अचानक से आग लग गई और बड़े बड़े जंगल नष्ट हो गए. अगेन दिस इज़ द ऑल्सो रीज़न ऑफ द डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब उसमें क्या है, एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो जंगलों में जो आग लगती है वो नेचुरल तरीके से लगती है, मे बी ड्यू टू सम वॉल्केनिक एक्टिविटी. और कई बार ड्राई क्लाइमेट में भी, ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से भी फॉरेस्ट फायर हो जाते हैं. और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, लाइक जो बिजली कड़कती है ना बरसात के टाइम पे, तो उस स्काई पावर से भी, वो थंडर लाइटनिंग से भी जंगलों में आग लग जाती है. सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो reason of depletion of forest and wildlife. Then comes the habitat destruction. We have already discussed that deforestation results in the destruction of wildlife habitat. Then over exploitation. Over exploitation का मतलब है, अगर हमें किसी रिसोर्स को यूज़ करना है तो हम उसको यूज़ करें, पर ओवर यूज़ ना करें. अब जब हम ओवर यूज़ करते हैं तो वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाता है, और जब बहुत भयंकर तरीके से उसको यूज़ करते हैं तो इट रिजल्ट्स इन ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, जो कि गलत है, बिकॉज इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आप सबको पता है, लाइक लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन. ये जितने भी टाइप के पॉल्यूशंस हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को. दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी बुरी तरीके से इफ़ेक्टेड है इन पॉल्यूशन से, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से भी. देन द लास्ट पॉइंट इज़ आर unequal access or inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibilities. This point we have already discussed in chapter 1 nicely. So these are the negative factors with which our biodiversity is depleting day by day. In the next class we will study about the conservation of biodiversity. Till then, keep revising chapter 1 and the part 1 of chapter 2. Students, if you have any query, any doubt, just write it in the comment section. I'll clarify your doubts, I'll answer your query. So till next class, stay safe, stay home.